Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Once again I welcome you all in the today's video session. In today's class we will be studying the second part of unitary method, that is unitary method for inverse variation. In the last video we discussed about the direct variation. In this particular video we will be discussing with indirect variation, or we call it as inverse variation. In this particular video session we will mainly introduce ourselves with inverse variation and many examples. Do remember to watch the complete video for better understanding and solve all the assignments and homeworks which you are being provided through WhatsApp. Thank you all. So let's start on with our today's topic, the second unit for unitary method, that is unitary method on inverse variation. On inverse variation. In the first video we studied about the unitary method on direct variation, and now we will study inverse variation. Let's start on with the introduction to inverse variation. What was in the introduction? Two quantities A and B are said to vary inversely if the product of both the quantity, that is A, B, or we can say A multiplied by B, remains constant. Two quantities A and B are said to vary inversely, SELY, if the product of AB remains constant. This is the definition for inverse variation. Inverse. What is inverse? Suppose I give you a number A and I ask you to write what is the inverse of A. The inverse of A will be 1 by A. The reciprocal of a number is mainly considered as its inverse. That is opposite. So what is in this particular topic is we have to find questions. Questions will be given on inverse variations through unitary method. So in unitary method we find the value for one quantity and then we find out the value for the desired quantity. So first understand what is inverse variation and how does it come. Suppose a very small example I am taking. Example. A wall is being built by 10 men. एक दीवार जो है वो 10 आदमी के द्वारा बनाया जा रहा है, and it is completed in 5 10 आदमी जो है वो किसी भी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं. 10 men complete the wall in 5 days. Now, if I ask what will happen if I engage more men, अगर हम 10 आदमी की जगह और आदमी लगा दें, सपोज आई इंक्लूड +10, दैट इज टोटल 20 ऑफ मैन. अब हम काम जो है वो 20 आदमी से करा रहे हैं. तो आप बताइए काम जल्दी खत्म होगा कि देर से? पहले 10 आदमी दीवार को खत्म करता था 5 दिन में, अब हम उसी दीवार का काम खत्म करने के लिए हम 20 आदमी को काम पे लगा दिए, तो मेरा काम डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाएगा. कितना दिन में हमको नहीं मालूम. आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड. 5 दिन में से बिल्कुल ही कम दिन में होगा, डेफिनेटली कम दिन में होगा. तो मान लीजिए कि 5 से कम जो है उसको हम मान लेते हैं एक स्टेज. कितना मान लेते हैं? एक स्टेज. आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन ये एक्स जो है ये क्या है? 5 से छोटा है.
ये इस x का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 से छोटा है। कितना भी आएगा तो ये समझ के कि अगर 20 आदमी लगाएंगे तो काम 5 दिन में अब खत्म नहीं होगा, काम 5 दिन से कम में खत्म होगा। कम का मतलब 4, 3, 2, 1 इतना दिन में काम खत्म होगा, जीरो नहीं हो सकता है। 4, 3, 2, 1, 2.5, 3.5, 4.5, 4.7 कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग। तो इतने दिन में काम खत्म होगा, मतलब यहाँ पर जो x है उसका वैल्यू क्या होगा, 5 से कम होगा। अब हम 10 आदमी काम खत्म करते थे 5 दिन में, अब हम सब आदमी को भेज दे, छुट्टी कर दे सबका, अब हम सिर्फ 2 आदमी से काम कराएं, सिर्फ 2 मेन से काम कराएं। अब आप बताइए 2 आदमी अगर काम करेगा तो क्या पूरा दीवार का बनना 5 दिन में खत्म हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा, ज्यादा दिन लगेगा। कितना दिन है, हम मान लेते हैं y डेज लगेगा। अब इस बार जो y है उस y का वैल्यू क्या है, 5 से बड़ा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एनीथिंग, 5.5, 7.5, 8.5, 9.5 कुछ भी हो सकता है। तो बात क्या है कि जब 10 मेन था तो काम खत्म 5 डेज में। अब यहां पर आ गया मोर मेन तो काम कम दिन में, मतलब लेस डेज। यहां पर क्या कंडीशन था, 2 मेन यानी कि आदमी कम हो गया, 10 से 2 यानी कि लेस मेन, आदमी कम, तो काम कितना, वाई डेज। वाई का वैल्यू 5 से बड़ा है यानी कि ज्यादा दिन, तो क्या हो जाएगा, मोर डेज। दिस इज इनवर्स वेरिएशन। ज्यादा आदमी कम दिन, कम आदमी ज्यादा दिन। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कार का एग्जांपल लेते हैं। अ कार कोई भी डिस्टेंस कवर करता है, मान लीजिए कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है किसी भी यूनिफॉर्म स्पीड में। 50 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समय के इक्वल इंटरवल में अगर स्पीड चेंज नहीं किया गया है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज अ कार कवर्स 50 किलोमीटर, व्हाट इज इट्स स्पीड, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर चलता है और वो टोटल दूरी कितना तय करता है, 50 किलोमीटर। अब हम आपको अगर ये बताएं कि डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, मान लीजिए कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, और 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको अगर ऐसे समझें कि अगर हम उसके स्पीड को बढ़ा दें, क्योंकि डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस फिक्स है, उसको अपने घर से नानी के घर जाना है, वो तो डिस्टेंस फिक्स्ड है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, 1 घंटा में 5 किलोमीटर कवर करता है, तो 50 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना घंटा चाहिए, 10 घंटा। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। 50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा, 10। अगर 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है तो अगले 1 घंटा में भी 5 ही चलेगा, यही यूनिफॉर्म स्पीड है। अगले 1 घंटे में भी 5 चलेगा, यही यूनिफॉर्म स्पीड है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 10 आवर। अब अगर हम लोग आगे देखें, अगर हम लोग उसके स्पीड को बढ़ा दे, मोर स्पीड, तो क्या होगा, आप अपने स्कूल से घर जाते हैं साइकिल से, आपका स्पीड मान लीजिए होता है 10 किलोमीटर पर आवर और आपका घर का दूरी जो है वो मान लीजिए 10 किलोमीटर है। दूरी को भी कांस्टेंट मान लेते हैं, दूरी 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, दूरी को x मान लेते हैं या d मान लेते हैं। तो आप रोज जितनी गति से साइकिल चलाकर घर पहुंचते हैं, आपको घर पहुंचने में मान लीजिए 10 मिनट लगता है। अगर हम आज आपको बोले कि आज थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेना है, ऐसा करना नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ऐसा बिल्कुल साइकिल हो या बाइक हो धीरे धीरे चलाना चाहिए। अगर हम आपको बोले कि आज आप अपना स्पीड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, अगर आप हल्का सा अपना स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं तो घर जो कल 10 मिनट में पहुंचे थे, आज क्या 9 मिनट में या 8 मिनट में पहुंच जाइएगा। इससे क्या पता चलता है कि मोर स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो लेस टाइम, समय कम। आज बहुत बारिश हो रही है, बारिश में अगर हम बहुत तेज चलेंगे तो क्या होगा, सारा पानी आंख पे लगता है ना। तो आज बारिश हो रही है, अब आपको बहुत धीरे धीरे चलने का मन है, तो आप अपनी स्पीड को कम कर दिए, लेस स्पीड। अगर आप स्पीड को कम कर दिए तो क्या होगा, टाइम ज्यादा। वेरी गुड, मोर टाइम। यही है इनवर्स वेरिएशन, मोर लेस, लेस मोर, मोर लेस,
लेस मोर। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स वेरिएशन को समझते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से जो भी बच्चे आगे फ्यूचर में कंपटीशन का तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे क्लास 7 से अच्छे से ध्यान नहीं देंगे कंपटीशन, उनको फिर से यही पढ़ना पड़ेगा। ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि उनसे कंपटीशन नहीं निकलेगा, डेफिनेटली निकालेंगे वो, लेकिन फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों करें? अगर जब आपको पढ़ाया जा रहा है अभी 7th में ये पर्टिकुलर टॉपिक, तो अभी इसको पढ़ लेना अच्छे से, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमको ये टॉपिक मिले दैट इज जस्ट अ रिवीजन फॉर मी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये है इनवर्स वेरिएशन। अभी इसमें हम लोग सिर्फ एग्जांपल देखें, अभी इसमें एक और चीज आता है इंपॉर्टेंट, वो भी देखते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट करते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं। मेल तो बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे। कल एक बच्चा था क्लास 9th का अभिषेक, उसने मैसेज किया, बोला कि सर एक टॉपिक पढ़ा दीजिए, डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द nth सेकंड। तो उसके लिए भी एक वीडियो तैयार करेंगे टुडे। सो जो भी बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं, कमेंट करते हैं और अच्छा लगने पर शायद लाइक करते हैं, वो तो मैं देखता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन एनी ऑफ सच स्टफ्स दैट यू लाइक माई कंटेंट। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम चाहते हैं। लेकिन लाइक करने का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, दैट इज द वीडियोज गेट सेव्ड इन योर लाइक्ड फोल्डर्स। आप वीडियो को आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप वीडियो को अपने ही फोन के लाइब्रेरी में जाइए, वहां पर लाइक्ड फोल्डर्स होता है, आप उसको क्लिक करिएगा, आपको वहां पर मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है लाइक करने का, इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल। Example 1. If 36 men can finish a piece of work in 25 days, how many days will 15 men take to do it? ये है क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 36 men can finish a piece of work in 25 days। 36 men मिलकर किसी भी काम को खत्म करते हैं 25 डेज में। इसके जस्ट पहले मैंने आपको वॉल का एग्जांपल दिया ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। If 36 men can finish a piece of work in 25 days में अगर काम खत्म करते हैं, how many days will 15 men take to do it? आप बताइए। I won't say anything, आप खुद से जवाब दीजिए इस बात का। 36 आदमी पहले काम कर रहे थे, उन्होंने काम खत्म किया 25 डेज में, मैंने और आदमी को छुट्टी कर दिया, अब मैं सिर्फ 15 men से काम करा रहा हूँ। अब बताइए मुझे मेरा जो काम है वो कम समय में कितना में, आई एम नॉट आस्किंग कितने दिन में, वो हम कैलकुलेट करेंगे भाई। आपको बस ये समझ है कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, आपको ये आना चाहिए। 36 men थे, 25 डेज में काम खत्म कर दिए, मैंने और बाकी आदमी का छुट्टी कर दिया, बोला बाय बाय, आज कल से नहीं आना। तो मैंने सिर्फ 15 men को छाट कर रख लिया जो अच्छे से काम करते थे, ठीक है। तो अब बताइए कि 15 men जो है वो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? डेफिनेटली मोर डेज। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, और सॉल्व करने के बाद एक कंसेप्ट आपको देंगे, वो कंसेप्ट क्या है वो देखिएगा। आपको हम फर्स्ट वीडियो से ही यूनिटरी मेथड के फर्स्ट एक्सरसाइज से ही आपको बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। 36 men can finish a piece of work in 25 days. In how many days will 15 men take to? फिर आपको निकालना क्या है? men। तो men कहाँ होगा? लेफ्ट साइड, आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए ये सारा केस। जब भी स्कूल खुलेगा हम ये पूछेंगे, आपको मेन निकालना है तो मेन कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट। तो क्या करते हैं, 36 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। तो 1 man कितना दिन में?
सबको डायरेक्ट वेरिएशन याद आया होगा। ऐसा वाला कंडीशन सर इधर जाता है तो डिवाइड कर देते हैं। गलत ना बच्चा, गलत। 36 मेन 25 डेज में, तो एक मेन इसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा बच्चा? बहुत ज्यादा दिन। और ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यही है इनवर्स वेरिएशन, यही है इनवर्स वेरिएशन। जो बच्चे रटते हैं उनसे नहीं बनेगा, अभी नहीं और कभी नहीं। आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, और जब तक हम पढ़ा रहे हैं आपके पास सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। 36 मेन 25 डेज में, तो एक मेन को काम खत्म करने के लिए बहुत दिन लगेगा। एक मेन उसी काम को खत्म करने में थक जाएगा, बहुत दिन समय लगाएगा। कितना समय? तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 36 डेज। दैट इज इट। यहाँ पर बहुत बच्चे सॉल्व करते नहीं, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको इतना ही। देयरफॉर 1 मेन इतना दिन, कितना मेन है मेरे पास? 15 मेन। देयरफॉर 15 मेन विल टेक, कितना समय लगाएंगे आप बताइए? कम की जाता? अब तो कम हो जाएगा। एक आदमी इतना काम करता है तो 15 आदमी मिल गया, तो डेफिनेटली उसका काम कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा। और कम के लिए क्या करते हैं बच्चा? डिवाइड, डिवाइडेड बाई 15। और यहां पर क्या होगा? डेज। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 5 जा 60 डेज। यानी कि 15 मेन जो है वो उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 60 डेज में। तो लिख सकते हैं 10 15 मेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पर बात आती है कंसेप्ट की, जो मैंने आपको बोला था। ये कंसेप्ट क्या है? नहीं बताएंगे तो बोलेगा सर आप तो बताए ही नहीं, आप भूल गए। फिर हमको कमेंट करिएगा सर आपने कुछ छोड़ दिया। चलिए 15 मिनट खत्म करते हैं कितने दिन में? 60 डेज। अब वापस आते हैं हम लोग अपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में। मैंने आपको क्या बताया था? Two quantities A and B are said to vary inversely, SELY बच्चा, F नहीं समझिएगा, inversely, if the product of AB remains constant. AB remains constant, याद है ना? A और B दो अलग अलग क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो, इक्वल हो, तभी वो इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल होता है। हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में कुछ और पढ़े थे, अगर आपको नहीं याद है तो ऊपर में आई बटन है ना, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देखिएगा। ए बी रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए यहां आते हैं, अब आते हैं यहां। चलिए फर्स्ट में कितने मेन थे बच्चा? 36 मेन। कितना डेज? 25। 36 मेन फर्स्ट क्वांटिटी ए मान लेते हैं, 25 डेज। सेकेंड क्वांटिटी बी। 36 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना होता है? हमको आता है मल्टीप्लाई करने। I am doing this for you. According to me, it will be 900. 5 6 are 30 plus 0 carry कितना? 3. 5 3 are 15 plus 3 18. Multiplied by 36 2 are 72. 0 8 plus 2 10 0 carry 1 7 8 और 1 9 कितना आ गया? 900. क्या क्वांटिटी मेन और डेज? इसको छोड़ दीजिए, आपको मतलब है कांस्टेंट टर्म ए बी से। ए और बी को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 900. अब आते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड में कितना क्वेश्चन था बच्चा? 15 मेन। और कितने डेज थे? डेज तो है ही नहीं सर, अभी निकाला है ना बच्चा। डेज कितना है? 60 डेज। 60 डेज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 6 जा 90 और 0 का 0, 900। क्या दोनों सेम है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यही कहता है ए बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं करेगा। दोनों में प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप मन में मल्टीप्लाई करिए और अपने आंसर को चेक कर लीजिए। ये आंसर चेक करने का एक तरीका है। और जल्दी से मल्टीप्लाई करिए मन में दोनों को और नीचे वाला भी दोनों को, एंड यू कैन फाइंड दैट दोनों आर सिमिलर। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमने जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन को, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। सो दिस इज द प्रॉपर वे। चलिए इनवर्स वेरिएशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं नहीं समझ में आया तो फिर से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से बताएंगे।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। A contractor has a workforce of 420 men who can finish a certain piece of work in 9 months. How many extra men must he employ का मतलब काम देना या काम पे लगाना, must he employ to complete the job, complete the work होना चाहिए बच्चा, अकॉर्डिंग टू में दोनों सही है, to complete the work in 7 months। तो ये है आपका क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अ वर्क फोर्स, यानी कि काम करने वाले लोगों को वर्क फोर्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग लेबर्स एंड एवरीथिंग। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अ वर्क फोर्स ऑफ 420 men who can finish a certain piece of work in 9 months। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 420 आदमी का वर्क फोर्स है, यानी कि 420 आदमी है जो किसी भी काम को 9 महीने में खत्म कर पाते हैं। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क इन 7 months। किसी भी आदमी को निकालना नहीं है, और कितने आदमी को इंक्लूड करें कि काम जो है वो 7 महीने में ही खत्म हो जाए। क्वेश्चन ये है, लेट्स सॉल्व। 420 मैन 9 month, 9 month में काम खत्म करने के लिए कितना आदमी चाहिए? 420 मैन। अगर काम को सिर्फ 1 महीने में खत्म करना होता बच्चा, काम को सिर्फ 1 महीने में खत्म करना होता तो कितना आदमी चाहिए था? बहुत ज्यादा आदमी। बहुत ज्यादा के लिए मल्टीप्लाइड 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 मैन, तो 1 month में कितना हो जाएगा? 9 0 0, 9 2 18 का 8 कैरी 1, 9 4 36 प्लस 1 37, 3780 मैन। अगर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 1 month में खत्म करने के लिए इतना आदमी चाहिए, देयरफॉर 7 month में खत्म करना है ना बच्चा काम को, तो 7 month के लिए कितना चाहिए? 3780 डिवाइडेड बाई 7। 7 5 जा 35, 2 8, 7 4 जा 28। कितना मेन चाहिए? 540 मेन चाहिए। तो कितने और मेन चाहिए? क्वेश्चन ये है कि कितने और मेन को एम्प्लॉय करने का जरूरत है। तो 7 महीने में काम खत्म करने के लिए कितना आदमी चाहिए? 540 मेन। और पहले से कितने मेन काम कर रहे हैं? 420। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ मोर वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, और कितने वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए? तो पहले टोटल कितने थे? 500। टोटल काम कर रहे थे 420, टोटल काम कर रहे थे 420 काम कर रहे थे, और 7 month में काम खत्म करने के लिए कितने चाहिए थे? 540। सो व्हाट वी कैन डू? नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड 540 minus 420, what we get? 120 men। So 120 men को अगर हम और एम्प्लॉय करते हैं तो मेरा काम जो है वो खत्म हो जाएगा 7 months में। Let's take one more example, that will be the last example of today's session। Example 3, a very easy example। "45 cows can graze a field in 13 days। How many cows
graze the same field in 9 days. This is the question. 45 cows can graze a field in 13 days. How many cows can graze the same field in 9 days? 13 days में 45 cows graze करती हैं, तो 9 days खत्म करने के लिए कितने cow चाहिए? How many cows graze the same field in 9 days? This is the question. तो we can write 13 days में फील्ड को ग्रेज करने के लिए कितनी गाय चाहिए? 45 cows. तो 1 डे में ग्रेज करने के लिए कितनी गाय चाहिए? बहुत. 1 डे में बहुत सारी, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 13 cows चाहिए. Therefore, to complete the work, 1 डे नहीं, कितने दिन में काम खत्म करना है? 9 days. Therefore, 9 days will require कितनी गाय चाहिए? 45 मल्टीप्लाइड बाई 13 डिवाइडेड बाई 9. 9 5 जा 45, 13 5 जा 65 cows. आपने देखा कितना आसान है. 13 डेज में 45 cows, तो एक दिन का निकाल लेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है यहाँ पर? 9 डेज. तो एक दिन में कितनी? 45 मल्टीप्लाइड बाई 13. अगर एक दिन में ही पूरे खेत को ग्रेज करना है, मतलब चरना है, तो कितनी गाय चाहिए? बहुत सारी. बहुत सारी का मतलब मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 13. एक दिन में हो जाएगा, लेकिन निकालना कितने दिन का है? 9 डेज. तो 9 डेज विल रिक्वायर कम के लिए डिवाइड 45 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 9. 13 5 जा 65 cows चाहिए. That is it. The question पूछ रहा था कि how many cows graze the same field in 9 days? We can write thus 65 cows graze the same field in 9 days. I hope you all understood everything. So this was introduction to inverse variation and the questions on inverse variation. If you have any doubt, kindly comment me and watch the complete video for better explanation. In the next video, we will look on with more questions on inverse variation. Till then, thank you all. Have a good day.